examples also. As first of all, I'm going to tell you where was will apply and where were will apply. Was will apply with singulars and were will apply with plurals. Singular, he, she, it. Plural, you and they. These seven the candidates. There is a group of candidates or any two candidates, more than two candidates. We will use were with them and was will go with he, she, it and singulars. And was and were will use for to represent in sentence about past. Past means the work already done in yesterday. That is a time which is past. At that case we will use was and were. I am going to write the statements here. So this is clear to you all. Where was will put and where were will put, and these will use for the statements which related to the past. So I'm going to write few statements here, even few words here. First of all, you have to recognize where we will put was and where we will put were. These are two words here and they are five. You have to recognize where you will put was and where you will put were. He stands for singular or plural. He stands for singular. When we indicate someone who is there in front of us, we knock that person with he, and he is always used for masculine gender, for male. Alright? So he is a singular, that's why we will use was here. Now they. They means there are many candidates where we are going to indicate or where we are indicating now. So they is stand here for many, and many means plural, and when plural is there we have to write were. Number books. Books is a plural word. As is here with book, that means this is a plural. And where is plural we will put were. Apple. Apple is a singular and the plural of apple is apples. Alright, so here is apple, a single fruit here. That's why we will use was. Now man. You know the plural form of man? Man singular and man plural. Right? So this is a plural word. This is a plural word. So we will write here what? Is that clear? Where there is a singular candidate or a singular thing or he, she, it, we will put was. If there are plural, we will put were. Alright, I hope this concept is clear to you all. Now we will move for statements, that means sentences. 4 statements are here and you have to fill was and were on previous page. But before that,
morning students, this is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language book which is स्वरांजलि हिंदी व्याकरण। बच्चों ये आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी व्याकरण का पीरियड है, इसलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 36 अर्थात पृष्ठ संख्या 36 ओपन करिए। पृष्ठ संख्या 36 पर आ जाइए, जहाँ पर आपको पाठ 8 विशेषण दिया गया है। पाठ 8 विशेषण, विशेषण को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पाठ 8 विशेषण। बच्चों आप अपनी पुस्तक में देखिए और यहाँ पर आपको एक मेले का दृश्य दिया गया है। इस मेले के दृश्य के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, कल हम सुंदर पोशाकें पहनकर मेला देखने गए। मेरे पास 100 रुपए थे पर मैंने छोटी मोटी वस्तुएं ही ली। मेरी बहन ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कुछ खिलौने खरीदे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों को दूसरे रंगों से लिखा गया है, जिसे आपको नीले रंग से लिखा गया है और उन्हें रेखांकित भी किया गया है। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है, हम फिर से पढ़ते देखते हैं। कल हम सुंदर पोशाकें पहनकर मेला देखने गए। तो बच्चों कैसी पोशाकें पहनकर गए मेला देखने? सुंदर। तो यहाँ पर हमें पोशाक के बारे में, पोशाक का अर्थ होता है परिधान, जो ड्रेस हम पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोशाक के बारे में पता चला कि हमारी जो ड्रेस थी वो कैसी थी? सुंदर थी। फिर आगे था, मेरे पास 100 रुपए थे। तो कितने रुपए थे? 100, यानी रुपयों के बारे में पता चला कि कितने रुपए थे? 100। फिर आगे चलते हैं, पर मैंने छोटी मोटी वस्तुएं ही ली। कैसी वस्तुएं ली? छोटी मोटी। ठीक है, वस्तुएं अर्थात सामान उसने कैसे लिए? छोटे मोटे सामान ही लिए। फिर मेरी बहन ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कुछ खिलौने खरीदे। कैसी चूड़ियाँ खरीदी? रंग बिरंगी। तो इस शब्द से हमें क्या चूड़ियों के बारे में पता चल रहा है कि चूड़ियाँ कैसी थी? रंग बिरंगी। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों से आपको कुछ समझ में आया? हमने क्या देखा कि ये शब्द क्या कर रहे हैं? पोशाकें, रुपए, वस्तुएं और चूड़ियों के बारे में उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? इनके बारे में कुछ बता रहे हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं कि चूड़ियाँ कैसी थी? रंग बिरंगी। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। ठीक है, अब आगे कुछ बातें मैं आपको लिखकर बताने जा रही हूँ विशेषण के बारे में, और अधिक आपको उदाहरण से समझने में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बच्चों यहाँ देखिए, मैंने आपको बोर्ड में कुछ वाक्य दिए हैं। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, मेरा भाई बुद्धिमान है। ठीक है, मेरा भाई बुद्धिमान है। दूसरा वाक्य है, राहुल के पास 2 कलमें हैं। तीसरा वाक्य है, यह नीला गुलाब है। और चौथा वाक्य दिया है, आम मीठा है। इन वाक्यों में हम देखते हैं, मेरा भाई बुद्धिमान है। इसमें भाई के बारे में, भाई की विशेषता, क्वालिटी क्या है कि मेरा भाई कैसा है? बुद्धिमान है। तो आप बुद्धिमान शब्द पे रेखा खींचेंगे। फिर है, राहुल के पास 2 कलमें हैं। तो कितनी कलमें हैं? कलमों की विशेषता यानी पेन की विशेषता क्या है? कितनी है? 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 2 पर रेखा खींचेंगे हम। ठीक है, यह नीला गुलाब है। तो ये कैसा गुलाब है? गुलाब के बारे में हमें क्या पता चला कि गुलाब कैसा है? नीला है। यह नीला गुलाब है। आगे हम चौथा वाक्य पढ़ेंगे, तो है आम मीठा है। तो आम के बारे में हमें क्या पता चला? आम कैसा है? मीठा है। तो आप मीठा शब्द में मैंने रेखा खींच दी है। अब हम समझते हैं कि हमने क्या किया है। मेरा भाई बुद्धिमान है, तो भाई के बारे में विशेषता पता चली बुद्धिमान शब्द से, यानी ये बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण है। राहुल के पास 2 कलमें हैं। ठीक है, तो कलमों की क्या विशेषता
क्या विशेषता है? गुलाब कैसा है? नीला है। और आम कैसा है? मीठा है। ये क्या है? ये शब्द क्या है? इन्हें ध्यान से देखिए। भाई, कलमे, गुलाब, आम, ये कौन सा शब्द है? ये क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। या यहाँ पर राहुल ने लिख के हमने सरनाम लिख दिया होता, उसके पिछली क्लास में मैंने आपको सरनाम पढ़ाया था ना, उसके पास दो कलमे हैं। ठीक है। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो परिभाषा में क्या समझेंगे? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, नीला, पीला, काला, हरा, ठीक, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? विशेषता बताने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है। किसी भी वाक्य में हमें विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ये हम कैसे समझते हैं? इसे समझने के लिए हमें इनके प्रकारों के बारे में जानना पड़ेगा। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। जैसे लिखा है मेरा भाई बुद्धिमान है, तो अगर आप इससे पूछेंगे प्रश्न मेरा भाई कैसा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? बुद्धिमान। कैसा? तो क्या बता रहा है? उसके बारे में बता रहा है। कैसा? मेरे राहुल के पास कितनी कलमें हैं? तो 2 कलमें हैं। यानी जो कैसा कितने शब्दों के उत्तर है वे क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विशेषण के भेद। ठीक है। विशेषण के भेद जानने से पहले एक बार मैं फिर से आपको इसके विशेषण के बारे में बता दूं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए वे शब्द विशेषण कहलाए। अर्थात विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले। विशेषता का अर्थ होता है किसी की ऊंचाई, रंग, रूप, अच्छाई, बुराई के बारे में बताना, उसका आकार कैसा है, ठीक है, या वह संख्या में कितने हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? विशेषताएं कहलाती हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इनके भेद फिर से जानते हैं क्या है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, आपको यहाँ पर विशेषण के भेद जानने हैं कि कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, और चारों भेदों के नाम याद करने। लेकिन ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप ये अपनी अगली कक्षा में यानी कक्षा 3 में पढ़ेंगे इनके बारे में ज़्यादा। लेकिन आप समझ जाइए संख्यावाचक, जैसे कि आपको पता चल रहा है इसमें क्या शब्द लिखा हुआ है? संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संख्या के बारे में, जो कि संज्ञा या संज्ञा की संख्या के बारे में बताया। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा था 2 कलमें। कितनी कलमें थी? 2। तो ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। 2 कलमें, 1 गिलास पानी या 1, ठीक है, 2 केले, 10 केले। तो ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण, सीधी सी बात है। फिर है गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गुण का अर्थ होता है किसी भी चीज का रंग, रूप, आकार, ठीक है, कैसा है, अर्थात देखने में कैसा है। जैसे गुड़ का रंग, रूप नीला, पीला, हरा, ठीक है, ये गुड़ सुंदर है, मोटा है, पतला है, ये सब क्या हो गए? गुणवाचक। ठीक है, जो किसी के रंग, रूप, आकार के बारे में बताते हैं गुणवाचक विशेषण। ऐसी विशेषताएं जो किसी के रंग, रूप, आकार के बारे में बताएं वो गुणवाचक होती हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण क्या हो गए? जो सभी के लिए विशेषण प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे सुंदर फूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाण का अर्थ होता है जो किसी चीज की मात्रा बताए। मात्रा के बारे में जो बताते हैं वो क्या होते हैं? मात्रा का अर्थ आप समझ रहे हैं? तौल, माप। ठीक है, मात्रा का अर्थ क्या है? माप या तौल।
तौल के बारे में बताया, जैसे 1 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर दूध। तो ये शब्द क्या बताते हैं? किसी चीज की वजन, माप, तौल बताते हैं। तो माप, तौल बताने वाले जो विशेषण होते हैं वे क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जो वजन के बारे में बताते हैं। तो आपको ये मैंने समझा दिया है, मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब हम बच्चों आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। हमने सीखा विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ विशेष से और विशेषण समझाने के लिए, उसे हम समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको देखिए कुछ शब्द लिखे हैं, ध्यान से समझते हैं। पहला मैंने लिखा सुंदर फूल। तो सुंदर क्या है? विशेषण है जो फूल के बारे में बता रहा है। फूल कैसा है? सुंदर। बच्चों हमने सीखा फूल के बारे में कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर फूल शब्द क्या है? फूल की विशेषता बताई गई है और फूल कैसा है? सुंदर है। यानी ये शब्द क्या हो गया आपका? विशेषण। ये विशेषता बता रहा है। जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है। तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण, विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और फूल जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाता है? वह कहलाता है विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष, और जिस शब्द से विशेषता के बारे में पता चलता है वह होता है विशेषण। आगे देखते हैं 2 केले। ठीक है, यहाँ पर केलों की विशेषता क्या है कि केले कितने हैं? 2। तो ये 2 शब्द क्या हो गया? विशेषण। और केले शब्द क्या हो गया? विशेष। किसकी विशेषता है? केलों की। शैतान, बंदर। तो कौन शैतान है? ठीक है, बंदर। तो बंदर शब्द क्या हो गया? विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है? शैतान। तो शैतान शब्द क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, अर्थात बच्चों जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, आपको पहले ही बताया गया है। लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? वे विशेष कहलाते हैं। बच्चों आप अपने घर में जितने भी सामान हैं उन सामानों में से कुछ सामानों की सूची तैयार करिए और सूची तैयार करके एक वाक्य बनाइए। उन वाक्यों में फिर आप विशेष और विशेषण के बारे में और विशेष और विशेषण को अलग अलग कीजिए। जैसे माना कि आपके घर में एक फैन लगा हुआ है, फैन सफेद रंग का है, तो आपने लिखा यह सफेद पंखा है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? सफेद। और विशेष क्या हो गया? पंखा। किसकी विशेषता बताई जा रही? पंखे की। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आपने प्लेट ली हुई है, प्लेट है, कटोरी है, कुछ भी है, आप उसके बारे में कोई वाक्य सोचिए और अपने आपके पास जो भी आपका बैग है, आपकी बुक है, कैसी है, छोटी है, बड़ी है, ऐसे आप विशेषण और विशेष के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अभ्यास कार्य करेंगे और अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला दिया गया है विशेषण शब्द का वाक्य दिया गया है, विशेषण शब्द और क्या क्या पूछा गया है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। दूसरा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों अभी मैंने बताया था विशेषण शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो आप तीसरे ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे। फिर है खा वाक्य। विशेषण के 5 भेद होते हैं, दूसरा है 3 भेद होते हैं, चौथा है 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, अभी यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, तो आप 4 भेद होते हैं अर्थात फिर से तीसरे विकल्प पर सही का निशान लगा देंगे। फिर गा में पूछा गया है, आप पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 38 में आइए। पेज नंबर 38 में हमारा तीसरा वाक्य दिया गया, पूछा गया है विशेष। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं
क्वालिटी या विशेषता बताई जाती है, अर्थात इसका पहला वाक्य सही है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिए गए, देखिए आप पेज नंबर 38 में उचित शब्द से रिक्त स्थान बने में आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं। आप उन शब्दों की सहायता से ये 5 वाक्य फिल करने हैं। जैसे पहला वाक्य है सूरदास हिंदी के डैश कवि हैं। ठीक है, तो कैसे कवि हैं, तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो शब्द है प्रसिद्ध वह काली 3 घोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कालिदास जी व्यक्ति हैं तो कैसे कवि हैं, प्रसिद्ध। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, प्रसिद्ध। अगला वाक्य है आज डैश लीटर दूध लाना। तो लीटर दूध तो कितनी मात्रा बता रहा है, माप बता रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 शब्द यहाँ पे लिखा है जो माप बता रहा है, तो 3 लीटर दूध लाना। फिर यह गाय है। ठीक है, तो यह गाय कैसी है, अब देखिए यहाँ पर थोड़े तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, काली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यह काली गाय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और घा वाक्य में यहाँ पे दिया है डैश से पके फल लाओ। ठीक है, तो कैसे, थोड़े से, मात्रा बता रहा है कितने पके फल, थोड़े से। तो ये थोड़े वर्ड में क्या है, आपका विशेषण है, थोड़े फल लाओ। फिर है डैश घर मोहन का है। कौन सा घर, वह है। आप क्या फिल करेंगे, वह। तो ये वाक्य आपके पूरे हो जाएंगे। फिर नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष अलग कीजिए। बच्चों मैं आपको यहाँ पे 2 बता रही हूँ, तब तक आप इसके बाद आप बाकी अपने आप करेंगे। आपको मैं पीडीएफ में उत्तर दूंगी, आप उत्तर से मिलान करेंगे। पहला वाक्य दिया गया है लाल गुलाब खिला है। तो विशेषण क्या है, कैसा गुलाब, लाल। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, विशेषण के नीचे लिखेंगे लाल। और किसकी विशेषता बताएंगे, कौन लाल है, कौन, गुलाब। तो विशेषण क्या हो जाएगा, गुलाब। काले बादल छा गए। कैसे बादल, कैसे शब्द, कितना शब्द, ये जो बताते हैं क्या होते हैं, विशेषण। तो कैसे बादल, काले। तो काले शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। और कौन काले हैं, बादल। किसकी विशेषता है, बादलों की। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, विशेष के नीचे लिखेंगे बादल। बाकी वाक्य आप अपने आप करेंगे। इसके बाद आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है। रचनात्मक कार्य में ये आपका एक जहाज का चित्र है। इसमें क्या दिया गया है, कुछ विशेषण यानी कुछ संज्ञा शब्द होंगे और उनकी विशेषता बताए, नीचे विशेषता बताई गई। ये शब्द क्या हो गए, मिलजुल गए हैं। तो आपको सही विशेषण के साथ सही विशेषता का मिलान करना है। जैसे अंगूर, तो अंगूर की विशेषता क्या बता सकता है, ठीक है, नीले तो होंगे नहीं। यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, खट्टे। तो यहाँ पर इसका जो जोड़ा है वो क्या बनेगा, खट्टी अंगूर। ठीक है, बहता पानी। तो आपको इस प्रकार से इसके विशेष और विशेषण की जोड़ी बनाकर लिखने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। और आपको अभी इसके अभ्यास कार्य जो मैंने बता दिए हैं वह आपको करने हैं, जो नहीं बताया वे समझ कर और करने हैं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे ध्यान से करना है, पाठ पुनः पढ़ना है। ठीक है, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn. Thank you.